بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. پاکستان اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک وجہ سے ڈسکس ہو رہا ہے اور وہ ہے عمران خان. عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. ان کے ساتھ غیر انسانی غیر قانونی سلوک کیا جا رہا ہے. ان کی جان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کی ایک آنکھ ضائع کر دی گئی ہے. وہ ناحق قید ہیں. وہ ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے جھوٹے بے بنیاد مقدمات میں. اور اب چونکہ معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ کھل کر سامنے آ گیا ہے اور چونکہ ان کی ایک آنکھ ضائع ہوئی اور اس سے پہلے ان کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا گیا اس پر پردہ پوشی کی جا رہی ہے، تو ہم براہ راست چلتے ہیں. آج عمران خان صاحب کی تینوں بہنوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں علیمہ خان، ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی صاحبہ نے کہہ کر اناؤنس کر کے کہ آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. وہ انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور میڈیا سے براہ راست مخاطب ہوئے. آج سے پہلے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کرتے تھے اور آ کر ان کی کوئی نہ کوئی بات بتا دیتے تھے باہر، لیکن آج انہوں نے پوری کی پوری سٹوری جو ہے اور پوری کی پوری ایک بھیانک سازش اس کو انفولڈ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ساری گفتگو میں اور جو انہوں نے سٹوری انفولڈ کی ہے اس میں بہت زیادہ صداقت ہے اور اس میں جھوٹ کا عنصر نہیں ہے. جو کچھ انہوں نے کہا اس سے کہیں زیادہ شدت اور حدت پس پردہ بند کمروں میں اس سے کہیں زیادہ ہے. عمران خان صاحب کی بہنوں کی کل ملاقات کا دن تھا. فیملی ممبر سے ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی بلکہ ان کو چکری روڈ پہ، چکری انٹرچینج پہ ہی روک لیا گیا اور ان کی گاڑی کے آگے پیچھے پولیس لگا دی گئی. گاڑیاں کھڑی کر دی گئیں اور ان کو وہاں پہ ڈیٹین کر دیا گیا، یعنی ان کو غیر قانونی غیر اعلانیہ حراست میں لے لیا گیا. سارا دن ان کو وہاں رکھا اور تقریباً 6 بجے ان کو رہا کیا گیا. وہ سیدھی پہنچتی ہیں بنی گالا اور بنی گالا میں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے جو کہا وہ اس میں انہوں نے واضح طور پر 4-5 باتیں پہلے جو کہی ہیں ان کو ذرا جائزہ لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی آج ہم اڈیالہ جیل میں اس امید کے ساتھ جا رہی تھیں کہ ہماری ملاقات کروا دی جائے گی کیونکہ عمران خان صاحب کی حالت اس وقت نازک ہے اور ان کو شدید ترین ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اور ان کو فیملی ممبرز کی ضرورت ہے اور چونکہ ان کا ایک عارضہ لاحق ہوا ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین تھا کہ آج کسی ایک بہن کی ملاقات ضرور کروا دی جائے گی کیونکہ یہ حکمران جو ہیں وہ اتنے ظالم نہیں ہو سکتے. لیکن انہوں نے کہا کہ آج پتہ چلا کہ یہ صرف ظالم نہیں بلکہ ان کے ارادے بہت ہی خطرناک ہیں اور انہیں پھر حراست میں لیا گیا اور انہیں اڈیالہ جیل تو کیا انہیں اس طرف جانے ہی نہیں دیا گیا. آج پھر اس دوران بہت ساری گرفتاریاں بھی ہوئیں اور اس دوران لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا اور ایک بار پھر بے بنیاد جھوٹے مقدمات درج کیے گئے، دہشت گردی کی دفعات لگائی گئیں. بہرحال علیمہ خان صاحبہ، ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی صاحبہ نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ جی بشرا بی بی کی بیٹیوں سے ملاقات ہوئی ہے ان کی اور ان کے ذریعے سے پیغام باہر آیا ہے. اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میری بہنوں سے کہو کہ میرے لیے آواز اٹھائیں اور ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل ان کو میرے تک رسائی دی جائے، جیل میں بھیجا جائے کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرے جو میڈیکل ٹیسٹ ہوئے تھے، بلڈ ٹیسٹ ہوئے تھے، ان کی رپورٹس بھی ابھی تک مجھے نہیں دکھائی گئیں کیونکہ وہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں اور باشعور ہیں اور ہر پیشنٹ کا حق ہے کہ ان کے ساتھ ان کی بیماری بتائی جائے، ڈسکس کی جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ میرا جو بلڈ سیمپل لے کے گئے تھے مجھے ابھی تک میڈیکل رپورٹس میرے ساتھ بھی شیئر نہیں کی گئیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ شیئر نہیں کی جائیں گی اور کسی بھی صورت میں بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹس اس وقت تک شیئر نہیں کی جائیں گی جب تک تمام ریزلٹس جو ہیں، تمام ریزلٹس وہ نارمل نہ ہو جائیں. کیونکہ جب تک خون میں کوئی نہ کوئی چیز موجود رہے گی، کیونکہ عمران خان صاحب ایک فٹ آدمی ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں، بے دریغ ایکسرسائز کرتے ہیں، ہائیکنگ کرتے ہیں اور دوڑ لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ان کا دل دماغ بالکل روشن ہے اور فزیکلی مینٹلی وہ فٹ انسان ہے اور ان کو کوئی عارضہ لاحق نہیں ہو سکتا اس طریقے سے. لہذا اس وقت تک ان کی کوئی بلڈ رپورٹ
टेस्ट ब्लड टेस्ट जो है वो नहीं मंजर आम पे लाई जाएगी और ना ही उनका खून किसी प्राइवेट पर्सन को या किसी जाती मुआलिज को लेने दिया जाएगा। ये मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं। ये उस वक्त दिया जाएगा जब तसल्ली कर ली जाएगी, 100% तसल्ली कर ली जाएगी कि अब उनके खून में किसी किस्म के वो वाले ज़र्रात नहीं हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पिछली मुलाकात में मुझसे, डॉक्टर उज़्मा कहती हैं कि मुझसे इसरार किया कि एक बात बाहर जाकर ज़रूर बताना कि ये मुझे मारना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ये बात रोक ली क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं पड़ी, मेरा दिल नहीं किया कि मैं ये जाके बात बताऊं। लेकिन उन्होंने कहा कि अब जो इनकी सारी हरकतें नज़र आ रही हैं ये वही हरकतें हैं जो कि इमरान खान ने कही थी, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि ये मुझे मारेंगे और ये मुझे मार रहे हैं, ये मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो सारी की सारी बात जो है ये सामने आ रही है। दूसरी बात इमरान खान ने कहा था कि मुझे ये मार रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये मुझे मारेंगे और इसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। ये बात भी इमरान खान साहब ने कही थी, क्योंकि पहले ये कहा जाता था मुझे कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा, लेकिन आज डॉक्टर उज़्मा ने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा था कि ये मुझे मार रहे हैं, मुझे मारेंगे और इसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है सबके सामने। अलीमा खान ने ये कहा कि पार्टी के जरिए बैकडोर राब्ते जो हैं उनकी कहानी भी उन्होंने सुनाई और उन्होंने बताया कि हमें ये बताया गया था कि मोहसिन नकवी ने की तरफ से ये पैगाम आया था कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं श्रीलंका जाने से पहले उन्होंने कहा कि हमें ये यकीन दहानी करवा के गए थे पार्टी लीडर्स के ज़रिए कि इमरान खान का इलाज शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में होगा और उन्हें वहीं मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि उस पर भी अमल नहीं किया गया और शिफा इंटरनेशनल भी नहीं लेके गए, बल्कि और डॉक्टर्स जो हैं वो लेके चले गए अडयाला जेल में। फिर डॉक्टर उज़्मा ने कहा, उन्होंने कहा कि एक बात जहन में रखिए कि हम किसी भी सूरत में किसी फौजी डॉक्टर, किसी फौजी ऑफिशियल, किसी पुलिस वाले पे भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए डॉक्टर आसिम यूसुफ हों, डॉक्टर फैसल सुल्तान हों, उनको जाना चाहिए और उसके साथ साथ डॉक्टर नौशेरवान बरकी हैं, उनको जाना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया अलीमा खान साहबा ने कि हमें पैगाम दिया गया। डॉक्टर उज़्मा ने कहा कि हमें कहा गया कि चलें ठीक है, आप 2 डॉक्टर नहीं जा सकते। हमने कहा चलें 2 डॉक्टर ना जाएं। फिर उन्होंने कहा कि आप फैमिली मेंबर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें फैमिली मेंबर भी को भी ना जाने दें, बहनों को ना जाने दें, तो आप डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर नौशेरवान बरकी को भेज दें। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर नौशेरवान बरकी को नहीं जाने दिया जाएगा, ये हमें पैगाम मिला कि जी नहीं, उसकी अप्रूवल नहीं हुई। तो उन्होंने फिर दोबारा कहा कि डॉक्टर आसिम यूसुफ जा सकते हैं। तो हमने कहा कि चलें ठीक है, डॉक्टर आसिम यूसुफ ही चले जाएं। लेकिन उसके बाद डॉक्टर आसिम यूसुफ को भी नहीं जाने दिया गया और हमें कुछ कहा जाता रहा, लेकिन किसी एक वादे पर भी, किसी एक यकीन दहानी पर भी अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी जद्दोजहद अब सड़कों पर होगी, मीडिया खामोश न रहे। खान साहब जो हैं उनका दौर, उनका दर्द जो है, इमरान खान का दर्द, उन्होंने कहा कि आपको नज़र नहीं आ रहा, जो चीज़ें आप देख रहे हैं कम से कम वो तो रिपोर्ट करें और हक और सच के साथ खड़े हों। और मोहसिन नकवी हो या शहबाज शरीफ हो, जिसके पास ताकत है, जल्द अज जल्द इमरान खान का इलाज किया जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। और ये इमरान खान को मारना चाहते हैं मगर हम ये नहीं होने देंगे और हम बहनें खड़ी हैं, पाकिस्तानी भी हैं और हम डट कर खड़ी हैं और हर चीज़ का मुकाबला भी हम करेंगी। अलीमा खान साहब ने कहा कि जो हमें पैगाम आया है, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी एक आंख बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मैं इनके इलाज से, जो सरकारी डॉक्टर आए थे उनके इलाज से मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं, न डॉक्टर से मुतमईन हूँ और जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं मैं उनसे बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। इसलिए मेरे लिए फौरी आवाज़ उठाई जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे साथ धोखा किया गया और हमारे साथ ड्रामा किया गया और हमें कहा गया कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल लेके जाएंगे, लेकिन फिर एक टीम जो है वो जेल भिजवा दी गई और सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट सबमिट करवाई गई उसमें कहा गया कि सब अच्छा है। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर उज़्मा ने खास तौर पे कहा, उन्होंने कहा ये जो मेडिकल रिपोर्ट है ये मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, ये एक भयानक मजाक है और ये हमारे साथ मजाक किया जा रहा है। इसे मेडिकल रिपोर्ट नहीं, इसे सियासी बयान कहा जाता है जो कि बयान किया गया है और इसके अलावा और कुछ नहीं। और जिस डॉक्टर ने
जिस डॉक्टर ने ये रिपोर्ट तैयार की है उसे कम से कम अपने प्रोफेशन का ही ख्याल रखना चाहिए था। तो मैं ये बता दूं कि ये रिपोर्ट डॉक्टर ने नहीं तैयार की, बल्कि डॉक्टर के सिर्फ दस्तखत लिए गए हैं। ये रिपोर्ट हमारे फौरी हुकाम ने तैयार की है और टिल फर्दर, जो उसमें टिल फर्दर ऑर्डर है वो उसमें वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि टिल फर्दर ऑर्डर। इसलिए इमरान खान के लिए उन्होंने कहा कि जिद्दोजहद बहुत हल्की थी, असल जिद्दोजहद अब शुरू होगी। और ये खुद जेलों में दावतें करते थे, पूरा ख़ानदान इकट्ठा होता था, सुप्रीटेंडेंट इनका मुलाजिम था और हमें इलाज के लिए भी अपने भाई तक रसाई नहीं दी जा रही और इनके लिए किसी की जान लेना शायद कोई मसला नहीं, इनके मुंह को खून लगा हुआ है। और 26 नवंबर को ये जवान बच्चों के सरों पर गोलियां मार सकते हैं, लेकिन इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। ये बात कही है नौरीन नियाजी साहिबा ने। और उन्होंने कहा कि 2 हफ्तों तक इमरान खान जेलर को कहता रहा कि मुझे ठीक नजर नहीं आ रहा, लेकिन जेलर ने एक बात भी नहीं सुनी। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि खान साहब कह रहे हैं कि मेरी आंख का मसला है, ये खराब है, इससे हल करवाएं, मेरा ब्लड टेस्ट करवाएं, मुझे मेरे डॉक्टरों से मिलने दें, इसके अलावा मेरी कोई डिमांड नहीं है। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि यकीन करें कि हम अदालतों में अपनी अर्जियां डालते रहे, दरखास्तें देते रहे और पिटिशंस फाइल करते रहे और वहाँ पे जाके जजों से, बराह रास्त चीफ जस्टिस साहिबान से हम रिक्वेस्ट करते रहे, मुलाकात करते रहे, लेकिन किसी भी जज साहब ने जो है वो हमारी बात तक नहीं सुनी और हमारे केसेस नहीं लगाए गए। और ये सारे का सारा उन्होंने कहा कि वकला मिले हैं, हम भी मिले हैं, लेकिन किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की और कोई फेवर नहीं की। और जबकि उन्होंने कहा कि अब आज से पहले इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि कोई अर्जेंसी है, आज उन्होंने पहली दफ़ा कहा है कि अर्जेंसी है और मामला सीरियस है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई जाए और उनको फौरी तौर पर ट्रीटमेंट दिया जाए। और उन्होंने कहा कि मुझे, और डॉक्टर उस्मा ने कहा कि मुझे दोपहर को एक पीटीआई रहनुमा की कॉल आई और उसने कहा कि आप इजाज़त दें, हम कासिम ज़मान को भेज देते हैं। उन्होंने कहा कि कासिम ज़मान चूंकि डॉक्टर नहीं था, तो हमने कहा कासिम ज़मान जाके क्या करेगा, तो उन्होंने कहा कि कासिम ज़मान जाके बातें करेगा। तो डॉक्टर उस्मा ने कहा कि हम बहनों ने कहा कि ये बातें करने का वक्त नहीं है, हमारा कंसर्न है उनकी बीमारी से मुतालिक, उनकी आंख से मुतालिक, उनको जो ब्लड क्लॉट है उससे मुतालिक। हमने बातें करने के लिए नहीं भेजना, हमें एक डॉक्टर भेजना है जो सारी सूरत हाल का जायज़ा ले और फिर हमें आके बताए और इसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी ये काम हमारे साथ नहीं किया गया। डॉक्टर उस्मा ने क्या कहा ज़रा सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉट है जो मैं सुनवाना चाह रहा हूँ। मुझे दोपहर को मुझे एक पीटीआई रहनुमा की कॉल आई। उसने कहा कि आप गो हेड दें, हम कासिम ज़मान को भेजते हैं और वो चले जाएंगे। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, और मैं कासिम ने क्या कहता है, वो कासिम बातें करेंगे खान साहब से। मैंने क्या आपको समझ आ रही है, हम खान साहब को के लिए बातें करने के लिए नहीं भेजे हैं, हम डॉक्टर को भेजना चाहते हैं, क्योंकि हमें किसी पर एतबार नहीं है। हम किसी सरकारी फौजी अदारे के इंसान को, हम पुलिस को हम ट्रस्ट नहीं करते, हमें एतबार नहीं है। तो मैंने इसको कहा कि देखो, अगर डॉक्टर बर्की को भेज दे और डॉक्टर आसिम को भेजे। उन्होंने कहा जी डॉक्टर बर्की की इजाजत नहीं मिली। तो मैं कहा डॉक्टर आसिम कम से कम उनको तो भेजना है। फिर फोन आए, आते जाके थे पूछते हैं, फिर पूछने गए, फिर बार बार कहते हैं आसिम को नहीं, आसिम भी नहीं जाएगा। मैं कहा फिर तो हम ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। मैं कहा बेचारे, मतलब हमें तो पता है, आप सबको भी पता है कि जब ये जुल्म करते हैं, जब ये मिलिट्री जब जुल्म पे आती है, तो वो तो जज हमारे सामने बैठे होते थे, वो तो बोल ही नहीं सकते, जो फैसला होता है वो लिखते थे, घर बच्चों के ऊपर बंदूकें रखते थे ये। तो मैं कहा बेचारे डॉक्टर्स कैसे ये इलाज कर सकेंगे। तो हम सिर्फ उसको भेजेंगे जो हमारा ट्रस्टेड डॉक्टर है, जो हमें पता है इनके बर्दाश्त कर सकेगा। फिर कहते जी नहीं, अच्छा पूछता, अच्छा चले आप नहीं जाएगा, फैमिली कोई नहीं जाएगी, डॉक्टर आसिम चले जाए। मैं कहा चले एक कर दें, आसिम चले जाए। फिर पता करने गए, कोई क्या वक्त होगा, 5 बजे थे शाम, मगरिब से पहले। हाँ, उसके बाद उन्होंने वापस नहीं जवाब आया, उन्होंने जो पता करने गया वापस नहीं आया। पर हमने सोचा कि अभी हो रही होगी इनकी। उसके बाद अच्छा, और वही हुआ जिसको मैंने उनको कहा, मैंने कहा जो रिपोर्ट आएगी, और वैसी रिपोर्ट आई।
अब जो रिपोर्ट आई है जो पब्लिक हुई है ये एक تو وہ کہتے ہیں یہ جو رپورٹ آئی ہے وہ ایک مذاق ہے اور انہیں ہمیں کسی بھی صورت میں کسی فوجی افسر پہ یقین نہیں ہے, کسی پولیس افسر پہ یقین نہیں ہے, کسی جیلر پہ یقین نہیں ہے, اور یہ ہمیں ایکسیس دی جائے. اور